So can you see my screen? No, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. I think now you can see my screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सो कल हमने ये किया था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सेज दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए over a closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of the vector field A over the volume enclosed by the surface. So mathematically you can write it as follows. Okay, double integral. Okay, this means surface integral. Closed surface है, this means वो close का symbol है. A dot ds, this is equal to the volume integral of divergence of a dv. Or this theorem states that the surface integral of a normal component of a vector A taken over a closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of A over the volume enclosed by the surface. So ये हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी. So गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट्स double integral to triple integral or triple integral to double integral. Okay. Now let us come to the Stokes theorem. Stokes theorem. Okay. So this theorem says that the line integral of a vector field A around any closed curve C is equal to the surface integral of the curl of A curl of a vector A over an open surface S. Okay. So mathematically you can write it as line integral of a vector field A, this is equal to the surface integral of the curl of A dot ds. So let me once again read the statement of this theorem. Okay, this theorem says, Stokes theorem says that the line integral of a vector field A around any closed curve C. Okay, so closed curve है तो ये closed का ये sign है. Okay, ये sign हमारा closed curve के लिए है. Each equal to the surface integral of the curl of A over an open surface S. So we can write this. Okay, or alternatively you can say that the line integral of a vector field A
taken over a closed curve C which bounds a surface S, okay, is equal to the surface integral of the curl of A taken over S. So यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे अब? We will consider an open surface. So हाँ, open surface. And open surface का क्या मतलब हुआ? Open surface कैसी होती है? For example, can you look at me? Can you look at me? Yes, ma'am. तो ये सरफेस आपको दिखाई दे रही है कुछ भी, राइट? तो दिस इज ए ओपन सरफेस, एंड ओपन सरफेस है तो इसकी कुछ ना कुछ बाउंडिंग एज होगी. तो बाउंडिंग एज इसकी क्या है? ये इसकी बाउंडिंग एज है. बाउंडिंग एज इसकी क्या है? सर्कल, राइट? एंड ये सर्कल क्या है? क्लोज्ड कर्व है. ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. So we are considering an open surface, but the bounding edge is a closed curve. Okay? और closed curve by definition क्या होता है वैसे? Closed curve होता है कि for example अगर आप पेन की निब रखें, अगर आपके पास कॉपी है, आप पेन की एक जगह निब रखें, ओके, एंड बिना निब को उठाए उसको कर्व को बनाए, ओके, तो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर फिर आ जाएं, दैट इज ए क्लोज्ड कर्व. और दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या होती है? सपोज आई कट दिस विथ ए सीजर, हम क्या करें? उसको कैंची से काट दें. ओके, कोई हमारे पास कर्व है, उसको अगर हम कैंची से काटें तो वो दो पीसेस में उसको डिवाइड हो जाना चाहिए. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्लोज्ड कर्व. ओके, सो for to prove this theorem let us consider an open surface और unclosed surface भी इसको बोलते हैं. हाँ बोलो मैम. ऐसे मोबियस स्ट्रिप जो होगी, सॉरी मोबियस स्ट्रिप, हाँ, मैम वो क्लोज होगा कि ओपन? मोबियस स्ट्रिप कौन सी कैसी वाली? मोबियस स्ट्रिप की मुझे तो अभी डेफिनेशन याद नहीं है. मैम मैं लिंक भेजूं कि बाद में क्लास के बाद पूछ लेना, है ना? वो Okay, बेटर okay. रहेगा. क्लास के बाद आप पूछ लेना, डिस्कस कर लेना, नो प्रॉब्लम. Yes, ma'am. और ये प्रूव करेंगे तो आपको अपने आप और भी चीज पता चल जाएगी, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा मोस्ट लाइकली. पर नहीं हो तो पूछ लेना, उसमें कोई बात ही नहीं है ना? So we consider an open surface. So हम कोई भी सरफेस कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज ओपन सरफेस. ओके, अब ओपन सरफेस है तो इसका ये जो बाउंडिंग एज है, दिस इज ए क्लोज्ड कर्व. एंड जब भी हम लाइन इंटीग्रल कंसीडर करते हैं तो we consider line integral or we calculate line integral in counter clockwise direction. counter clockwise direction क्या होती है? घड़ी की डायरेक्शन को हम बोलते हैं clockwise direction, and घड़ी की उल्टी डायरेक्शन is counter clockwise direction. Okay, and this counter clockwise direction in physics is supposed to be the positive direction. So we consider an unclosed surface or open surface in a vector field, okay, so that the bounding edge is a closed curve. Okay, अब हम क्या करते हैं? लाइन इंटीग्रल के लिए we divide this curve into number of pieces and we consider one such piece. So one such length element we consider, right? So suppose I say this length element dr, this infinitesimal length element is dr, okay, and suppose I have a vector here, vector a, okay, making an angle theta with dr. तो हम कैसे लिखते हैं लाइन इंटीग्रल? इंटीग्रल c a डॉट dr, ऐसे ही बताया था ना मैंने आपको. ओके, सो we consider, let us write down up to here, then I go further. Okay, so let us consider an open, और इसे unclosed भी बोलते हैं, unclosed surface S. Okay, so bounding edge इसका क्या होगा? The bounding edge of S
और यहाँ पर इसको सेंटेंस बना दो, इज ए क्लोज्ड कर्व. Okay, now the line integral of A around, इसको मैं कर्व को C बोल देती हूँ. Okay, around any closed curve C which is traced counterclockwise direction is, क्या हो जाएगा इसमें, C, and this is a closed curve, so I put this sign here, A dot dr. Okay, मैं इसको इक्वेशन नंबर A दे देती हूँ या 1 दे दो, जैसा आपकी मर्जी. ओके, हम एक सेकंड ऊपर करना. हाँ, ठीक है. यस मैम. ओके, नाउ व्हाट आई डू कि अब मैं अभी तो मैं आपको लाइन इंटीग्रल की बात कर रही थी. नाउ व्हाट आई डू, आई डिवाइड दिस सरफेस इनटू नंबर ऑफ पीसेस, एंड फॉर दैट आई ड्रॉ दीज लाइंस. Okay, so I divide this surface by the network of these lines. Okay, now if you consider one such piece, okay, तो उसको हम क्या बोलते थे, this is your surface element ds, right? And now if n hat is the unit positive outward normal upon ds, okay, तो उसको ऐसे ड्रॉ करते थे, n hat is the unit positive outward normal upon ds. Okay, and a is a vector making an angle theta with n hat. Okay, then ये इसका वेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, वेक्टर ds. and what is vector ds, vector ds is n hat ds, n hat times magnitude of ds. Okay, so magnitude of this vector ds. So let me first write down, let us divide this curve. मैम ऊपर स्क्रॉल कर. अभी बेटा फिर से 2 बार बताऊंगी, डोंट वरी, अभी फिर से बताऊंगी, बार बार बताऊंगी आपको. अभी ये फिगर को भी अभी कई बार दिखाना पड़ेगा मुझे, डोंट वरी. ठीक है, ओके मैम. ओके, नाउ लेट अस डिवाइड Mahipal Verma, is it in our class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let us divide the surface S into infinitesimal elements by network of lines, and consider one such element of area ds. Okay, now let n hat be the unit positive outward normal upon ds. The vector area of the element
एज क्या हो जाएगा, n hat times ds which is your vector ds. Okay, this you know already. Okay, but I have written that. Now what मैंने आपको इसका physical interpretation बताया था curl का. Okay, so what is curl of a, this by definition this is the maximum line integral calculated per unit area. Maximum, ध्यान से सुनो. Okay, the curl of a vector field at any point is defined as the maximum line integral of the vector calculated per unit area along the boundary of an infinitesimal area. Okay, so unit area का जितना maximum line integral है, that is your curl. Okay, so unit area का अगर maximum line integral तुम calculate कर रहे हो तो maximum line integral is curl. So this is at a point. Okay, so therefore the maximum line integral of the vector A around the boundary of this area ds क्या हो जाएगा, curl of A multiplied by ds. समझ में आया कि नहीं? What is curl of A? By definition मैंने आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताया था कर्ल ऑफ ए का. ओके, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज कर्ल ऑफ ए. कर्ल ऑफ ए बाय डेफिनेशन ओके, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए okay, at any point is defined as the maximum line integral of the vector computed per unit area along the boundary of this boundary of an infinitesimal area at that point. Okay, so unit area के along जितना maximum line integral है, that is your curl. Okay, so for the area ds, this is curl A multiplied by ds. So therefore the maximum line integral of A around the boundary of the area ds is curl A multiplied by ds. So curl A dot ds. Okay, this is your maximum line integral of A around the boundary of the area ds. और यहाँ पर फिगर में देखो तो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल क्या होगा अराउंड द एरिया ds. This is, if this is the maximum line integral if you are calculating. Okay, is that right? Okay, maximum line integral ये होगा. Now this applies to all the surface element. So ये हर surface element के लिए होगा. This means we have to sum up all these elements, little element. This means we have to take integral sign. और surface integral है तो हम क्या साइन लेंगे यहाँ पर,
डबल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का साइन लेंगे, सो डबल इंटीग्रल. ओके, सो दिस अप्लाइज, नाउ दिस अप्लाइज to all the surface elements. So this means, hence the sum of the line integrals of A, okay, around the boundaries of all elements is curl A dot ds, curl A dot ds. Now let us call it B. Okay, fine. Now look at the figure once again. देखो, फिगर दिखाई दे रहा है ना? फिगर में देखो, यहां पर सपोज आई टेक वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट. तो वन एलिमेंट के केस में तो आपने देखा, ये मैंने रेड से किया था, दिस इज द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल. नाउ सपोज आई टेक टू एलिमेंट्स. ओके, सो इफ आई टेक टू एलिमेंट्स, सपोज आई टेक दिस वन, लेट मी टेक नेक्स्ट कलर. ओके, सपोज आई टेक नाउ टू एलिमेंट्स, तो मैंने ये एक ब्लू से एक और कर लिया. ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, आप लाइन इंटीग्रल इस डायरेक्शन में ऐसे कर रहे हो कैलकुलेट, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हो ना. सो यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हो, यहाँ पर भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे. तो क्या हो रहा है, ये एरो तुम्हारा नीचे की तरफ आ रहा है और ये एरो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है. इफ आई टेक दिस वन एलिमेंट ओनली, मैंने यहाँ फिगर बना दिया है नीचे. तो क्या हो रहा है, यू आर कैलकुलेटिंग लाइन इंटीग्रल के मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल इसका ये हो जाएगा. यू आर कैलकुलेटिंग लाइन इंटीग्रल लाइक दैट. इज दैट राइट? नाउ इफ यू टेक टू एलिमेंट्स, ओके, इसको ds1 ds2 ds3 से सपोज मैंने डिवाइड कर रखा है, ये ds1 है, फिर ds2 है, एंड सो ऑन. If I take two elements, then again I calculate line integral in the counter clockwise direction. तो इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करूंगा. Yes, ma'am, fine. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ. सो दिस लाइन इंटीग्रल अराउंड द कॉमन बाउंड्री, दिस विल कैंसिल. ओके, सो देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पर अगेन मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल वुड बी ये जो इसके अराउंड जो बाउंड्री पर होगा. यहाँ से अगर हमने शुरू किया तो ये इस तरह से होगा. राइट, नाउ लेट अस टेक थ्री एलिमेंट्स. सपोज मैं एक और ले लेती हूँ. तब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो आप, एंड इसको भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करो. तो क्या होगा, कॉमन साइड पर हमेशा कैंसिल हो जाएगा. तो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल इन दिस केस क्या हो जाएगा, फिर इसके केस में फिर से मैं यहाँ पर अगर येलो से करूं तो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल फिर से ये वाला ही हो जाएगा, मतलब हर बार बाउंड्री पे ही रहेगा लाइन इंटीग्रल. अब सपोज आई टेक फोर्थ वन, मैंने फोर्थ वन ले लिया, अगेन कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल. तो फिर से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम कैलकुलेट करोगे, तो फिर से तुम देख रहे हो कि ये कॉमन बाउंड्री पर क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है. सो ईच टाइम द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल क्या होगा तुम्हारा, जो बाउंड्री पर होगा ये. ओके, और ये जो कॉमन साइड है यहाँ हमेशा कैंसिल कर जाएगा. इज इट क्लियर? सो देयरफॉर दिस इक्वेशन 2, okay, this means this surface integral, this is equal to the surface integral of the curl of A dot ds, this is equal to the line integral,
okay, A dot dr. So therefore these equations A and B they are equal. ये समझ में आया? तो फिर मैं लिखूं, मैम थोड़ा सा ऊपर करना। ठीक है, और ऊपर, ठीक है। So now from the figure, let me write down. Now from the figure, okay, look at the figure. In this figure, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, okay, that the line integral, along the common sides of the contiguous elements, contiguous माने एक दूसरे से सटे हुए हैं, जो कहाँ से आ रहा है, of the contiguous elements means सटे हुए elements जो हैं they will mutually cancel each other because they traverse in opposite directions. Thus only those sides of the elements which lie on the periphery means boundary, on the which lie in the periphery of the surface okay, contribute to the line integral. Therefore, the surface integral which is equation B, okay, gives the line integral of A around the periphery of the surface which is also given by equation A. Okay, so hence this line integral around an enclosed curve C is equal to the surface integral of curl of A dot ds. Okay,
So this is your Stokes theorem. So Stokes theorem converts double integral to single integral or single integral to double integral. So whichever way is easier you can. हाँ बोलो. हम जैसे डी एलिमेंटल जो सरफेस है जैसे ds, तो उनका डायरेक्शन क्यों लिया मैम? कहाँ पर? मैम जैसे आपने डायरेक्शन से कॉमन डायरेक्शन कैंसिल किया था यहाँ पे, ये क्योंकि हम लाइन इंटीग्रल. एंटी क्लॉकवाइज. हाँ तो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं. लाइन इंटीग्रल के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे इफ यू रिमेम्बर. तो लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते थे आप? लाइन इंटीग्रल काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट किया जाता है बिकॉज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज सपोज टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो जैसे कि हमने ये यहाँ पर किया कैलकुलेट. अब जैसे ये किया, पहला एलिमेंट देखो जो रेड में है, तो आपका इस तरह से ही तो कैलकुलेट करोगे आप. तो इस तरह से जा रहा है आपका. अब आपने दो एलिमेंट ले लिए, आपको ये हर एलिमेंट के लिए लाइन इंटीग्रल अलग अलग निकालना है मान लो. तो जब आप मीनिंग ये है कि जो ds है वो एक कर्व का काम कर रहा है. ds एक कर्व का काम नहीं कर रहा है. ds सरफेस है, सरफेस की बाउंड्री है दैट कर्व. यस मैम, ये कर्व उसकी बाउंड्री की बात कर रहा कोई भी सरफेस है, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था, कोई भी सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस है या ये सरफेस है, इसकी बाउंडिंग एज है ना हमारी. तो ये बाउंडिंग एज जो है ये तो कर्व है. यस मैम, ये जैसे कि इसमें सर्किल है, राइट. तो ये तो कर्व है. अंदर का ये जो है ये पूरा ये सरफेस है. तो इस सरफेस को जो हमने डिवाइड किया है उसका एक पीस जो कंसीडर किया उसे ds बोला है. ठीक है. और उसकी जो बाउंड्री है उस सरफेस की वो हमारा कर्व है. तो जब लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो अराउंड दिस एरिया ds, तो उस ds की बाउंड्री पे देखोगे ना. तो एक एलिमेंट लिया है तो तब तुम्हारा ये इसका मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यही चारों तरफ इसकी बाउंड्री तो हुई जो भी उसकी है. लेकिन दो ले लोगे अगर, तो अगर दो एलिमेंट्स ले लिए आपने सटे हुए यहाँ पर, तो अगर दो एलिमेंट लिए तो जो सटी हुई साइड है बिल्कुल वो वाला साइड का क्यों कैंसिल हो जाता है? क्योंकि दोनों का आप सेम डायरेक्शन में ही तो कैलकुलेट करोगे, उसका भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरे का भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो वो जो सेम साइड है तो एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो उसके दो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया. तो जो बाउंड्री हो गई उसकी, तो क्या हुआ, टोटल बाउंड्री फिर से वो की वही रही जो बाहर है. तो ऐसे करते करते जब आप सारे बाउंड्री पे सारे पे करते हो हर सरफेस एलिमेंट पे, तो आपको बाद में पता चलता है कि सिर्फ मैक्स लाइन की बाउंड्री रह गई उसकी पूरी, मतलब सरफेस की. एंड दिस इज योर मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल. ये है इसका. ओके. सो फिर से बताऊं एक बार क्विकली. ओके. So again let me read this theorem. Okay, the line integral of a vector field A around any closed curve C is equal to the surface integral of the curl of A over an open surface S. Okay, so by looking at it also you can say that the line integral of a vector field A around any closed curve C, जो नीचे लिखा हुआ है closed curve है इसलिए closed curve का साइन है, A dot dr, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल. सो सरफेस इंटीग्रल है तो डबल इंटीग्रल लगाए हुए हैं ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट ds. और हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, हमने एक ओपन सरफेस कंसीडर की जिसकी की बाउंड्री क्लोज्ड कर्व है. ओके, हमने कोई सरफेस कंसीडर की जिसकी बाउंड्री क्लोज्ड कर्व है. और क्लोज्ड कर्व मैंने आपको बाय डेफिनेशन बताया था कि अगर आप जैसे निब अगर ले लेते, कोई भी निब रखें, तो आप उसको जो भी कर्व ड्रॉ करेंगे तो विदाउट उसको उठाए हुए जो कर्व हमारा ड्रॉ हो रहा है, ओके, दैट इज योर क्लोज्ड कर्व. और इसकी दूसरी डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट डेफिनेशन है. ये तीन प्रॉपर्टी होती है, तीसरी मुझे याद नहीं आ रही. तीन प्रॉपर्टी होती है, वो तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर उनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो क्लोज्ड कर्व नहीं होता. दूसरी ये है कि अगर तुम उसे कट करो कहीं से भी तो वो उसकी बाउंड दो पीसेस हो जाने चाहिए. ओके, तो कट करो माने उसकी बाउंड्री, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पर आपने अगर दो पॉइंट ले लिए, एक बाउंड्री पर और दूसरी बाउंड्री पर, तो और एंड फिर उसको कट किया तो आपके दो पीसेस हो जाने चाहिए. ये डेफिनेशन है क्लोज्ड कर्व की.
सो यहाँ पर हमने ओपन सरफेस कंसीडर की है, तो ऑब्वियसली उसकी कोई बाउंड्री होगी, क्या, और वो बाउंड्री हमारी कोई भी कर्व होगी जो कि क्लोज होगा। ओके, नाउ हमने क्या किया कि हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले लाइन इंटीग्रल अराउंड दिस क्लोज्ड कर्व। तो लाइन इंटीग्रल जब कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड दिस कर्व इनटू नंबर ऑफ पीसेस, देन वी कंसीडर वन सच पीस, ओके, एंड देन वी राइट डाउन दिस लाइन इंटीग्रल। सो लाइन इंटीग्रल मैंने ये लिख दिया है जो कि वेक्टर जो कि इक्वेशन ए है। अब मैं सरफेस को देखती हूँ, तो सरफेस को मैं देखने के लिए क्या करती हूँ कि आई डिवाइड दिस सरफेस इनटू नंबर ऑफ पीसेस। तो यहाँ ओपन सरफेस है, तो मैंने यहाँ दिखाने के लिए आपको यहाँ नंबर ऑफ नेटवर्क ऑफ लाइन से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, सो डिवाइड कर दिया तो एक पीस कोई भी है जिसको कि उसको हमने क्या बोला, ds। ओके, एंड फिर इसका हम सरफेस इंटीग्रल अगर लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, डबल इंटीग्रल साइन आएगा। ओके, आई एम सॉरी पहले मैंने पूरा नहीं बताया अभी आपको। ओके, वी डिवाइड, हमने क्या किया, इस सरफेस को नेटवर्क ऑफ लाइन से डिवाइड कर लिया। ओके, अब हमने कंसीडर किया वन सच पीस, इसको हमने ds बोला हुआ है, इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट जो हमने बोला हुआ है, राइट। अब हमने क्या किया, एनहेट जो है यूनिट पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल हमने कंसीडर किया। आउटवर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल अगर ओपन सरफेस है तो नीचे भी हो सकता है ना, तो यूनिट पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल हम एनहेट कंसीडर करते हैं। एंड इफ ए इज अ वेक्टर एंड इफ दिस मेक्स एन एंगल थीटा विथ एनहेट, तो इसका वेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले स्मॉल एलिमेंट का वेक्टर ds। ओके, एंड वेक्टर ds इज नथिंग बट एनहेट times the magnitude of ds। okay, now we know by definition curl of A is defined at any point, curl of A at any point is defined as the maximum line integral of the vector calculated per unit area along the boundary of the infinitesimal area। तो यूनिट एरिया के लिए जो हम मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज योर कर्ल ऑफ ए। So this means if you are doing it for the area ds, then you have to multiply curl of A by ds. So this is curl of A dot ds. अब ये आपने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेट किया था, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस फॉर ऑल दीज स्मॉल एलिमेंट, राइट। सो दिस मीन्स यू हैव टू सम ऑल दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ सरफेस इंटीग्रल आएगा, क्यों, क्योंकि ये सरफेस के लिए हम ले रहे हैं, सो सरफेस इंटीग्रल आ गया। सो ये इक्वेशन बी लिख दी थी हमने, विच इज कर्ल ऑफ ए डॉट ds, राइट। अब हम फिगर से देख सकते हैं, फिगर से हम देख सकते हैं कि जहां जहां कॉमन बाउंड्री है वहां हम लाइन इंटीग्रल जब कैलकुलेट करते हैं तो हर कॉमन बाउंड्री पर वो कैंसिल कर देता है। सो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ईच टाइम जो बाउंड्री होती है वही बचता है, राइट। सो एक के केस में देखा आपने, एक एलिमेंट के केस में, फिर दो एलिमेंट के केस में भी देखा, फिर तीन के में भी देखा, फिर चार के में भी देखा। आप चाहे जितने एलिमेंट भी ले लें, करते करते पूरा हर एक एलिमेंट के लिए कर लें, देन यू विल रियलाइज कि जो तुम्हारा कर्व है वो ये सिर्फ यही कर्व आएगा, ये जो बाउंड्री पर है, ये वाला, राइट। सो दिस मीन्स कि यहाँ पर दिस इज मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल आ जाएगा, ये वाला। और मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल जो आएगा वो आपने लिख लिया, और आपने लाइन इंटीग्रल सबसे पहले भी लिखा था, सो वो सेम ही तो है, अलग अलग तो नहीं है। सो देयरफॉर these two equations A and B, they are equal. So therefore this line integral around any closed curve C is equal to the surface integral of the curl of A dot ds. Okay, and it is your Stokes theorem. Now let us do few examples of Stokes theorem. Okay, हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। थैंक यू। Okay, so let us do example. Verify Stokes theorem for the function
f which is equal to, which is given to you, this vector f is given to you x ix plus j by, okay, integrated round the square in the plane z equal to 0, okay, whose sides are along the lines x equal to 0, y equal to 0, x equal to a and y equal to a, okay. So now let us solve this question. Let us verify Stokes theorem. Okay. So we know Stokes theorem. Okay. This is line integral. Okay. F dot dr. This is equal to the surface integral of the curl of f dot ds. Okay. So हमें पहले let me draw this figure. तो z equal to 0 दिया हुआ है. यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ. सो हमें वेक्टर दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड राउंड द स्क्वायर. सो स्क्वायर है ये कर्व इन द प्लेन z इक्वल टू 0. दिस मीन्स कि ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है. हुज साइड्स आर अलोंग द लाइन. सो साइड्स की लेंथ क्या है? ए. ओके. सो एवरीथिंग इज गिवन टू अस. लेट अस ड्रॉ दिस फिगर. गुड. ओके. सो z इक्वल टू 0 है. सो ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एंड वाई. एंड अब लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट. So this is along OA, along AB, and then along BC, then along CO. Okay. And इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? चारों पॉइंट्स के 0 0 एंड यहाँ पर क्या आएगा? A0, AA and this is 0A. Okay. So यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ यहाँ पर क्या है? y इक्वल टू 0. इस लाइन पर क्या है? y इज इक्वल टू 0. यहाँ पर y इक्वल टू 0 है. एंड इस लाइन पर क्या है? x इक्वल टू 0 है. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग इट. सो हमें लाइन इंटीग्रल हमें प्रूव क्या करना है? दैट f डॉट dr, ओके, दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ f डॉट ds. और ds क्या है हमारी? ये सरफेस, ये वाली. ये वाली सरफेस हमारी ds है, s है, सरफेस s है. ओके. सो दिस इज सरफेस s. ओके. नाउ लेट अस डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल start with left hand side and then we will do right hand side and then we will see if they are equal or not. Okay. So to verify this theorem, let us take this left hand side. अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा क्या है? इंटीग्रल c f डॉट dr. ओके. सो हमें कितने इंटीग्रल कैलकुलेट करने हैं? इंटीग्रल अलोंग OA प्लस AB, इंटीग्रल अलोंग AB f डॉट dr प्लस
integral along BC f dot dr plus integral along CO f dot dr. सो हमें 4 इंटीग्रल कैलकुलेट करने हैं, 4 लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने हैं. ओके, देन दिस वुड बी ए क्लोज्ड कर्व. सो लेट अस कैलकुलेट इट वन बाय वन. सो पहले के लिए क्या हो रहा है, अलोंग OA. सो OA के लिए क्या हो रहा है, सो लेट अस कैलकुलेट इट वन बाय वन. सो फर्स्ट इसको मैं फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, third and fourth. Okay, so first one, this is along OA. So you can see from here कि OA पर क्या हो रहा है, x is changing from 0 to A, okay, but y is not changing, y is going from 0 to 0. This means y अपनी जगह बैठा हुआ है चुपचाप. Okay, he is not doing anything. So only x is changing from 0 to A. Okay, so यहाँ पर हमारा क्या है, y is 0, x is changing from 0 to A. Okay, but y equal to 0, y 0 पर ही बैठा हुआ है, so y equal to 0. Right, now calculate this line integral along OA. So this is equal to OA f dot dr. सो f क्या है हमारा, यहाँ पर f हमें दिया हुआ था, क्या था वो, x I x प्लस जे वाई. अब dr यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, डॉट. अब dr क्या होगा यहाँ पर, दिस इज, सो dr इज dxi प्लस dyj प्लस dzk. पर यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा, I dx. Okay, so y so I dx. Is that clear? dy 0 हो जाएगा, dy 0 हो जाएगा. ओके, एंड ये बीच में डॉट लगा हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट होगा. सो I डॉट I इज 1, I डॉट j इज 0. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, दिस इज इंटीग्रल x स्क्वायर dx. और लिमिट्स क्या आ जाएंगी अब, x इक्वल टू 0 से a. सो नाउ डू इट. ओके, सो ये क्या आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 एंड पुट 0 टू a. सो दिस इज a क्यूब बाई 3. तो ये तो आ गई आपकी फर्स्ट वन, फर्स्ट इंटीग्रल. नाउ डू इट फॉर द सेकेंड. ओके, सो सेकेंड के लिए करो, क्या आया, now second. Okay, this means along B AB, right, along AB f dot dr. so along AB क्या हो रहा है, f तो मैं लिख देती हूँ x I x plus j y. okay, along AB you can see from here कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर x तो 0 ही है. ओके, नहीं 0 नहीं है, a है. x की वैल्यू 1 है, a है, a x is changing from A to A, so this means x is sitting at A, doing nothing but x is sitting at A. okay, so x equal to A है यहाँ पर, I'm sorry, ये वाला x equal to A होगा. okay, and y changing from 0 to A. okay, so y is changing from 0 to A. okay, x equal to A, यहाँ पर क्या है, along AB x equal to A. okay, and y is changing from 0 to A. okay, and यहाँ पर dr क्या आ जाएगा, dr क्या होगा यहाँ पर, dy sec है,
डी बाई जे कैप, सो जे डी बाई हो जाएगा यहाँ पर, राइट। सो डी आर हमारा हो जाएगा जे डी बाई, राइट। नाउ टेक डॉट प्रोडक्ट, ओके। सो डॉट प्रोडक्ट लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए अलोंग ए बी एक्स बाई एक्स वाई डी बाई, ओके। बट एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, 1, oh sorry, a. So this is a is a constant, you can take it outside, this is by dy, okay। and limits क्या आ जाएंगी यहाँ पर, limits क्या आएंगी, 0 to a, right। so this is a by square by 2 and 0 to a, so this is a cube by 2, am I right? ठीक है। नाउ डू इट फॉर द थर्ड वन, ओके। थर्ड वन का क्या आ जाएगा, नाउ थर्ड वन, थर्ड इंटीग्रल क्या है, अलोंग BC, राइट, अलोंग BC। सो BC में क्या हो रहा है, BC में x is changing from a to 0 and y is changing from a to a, this means y is not changing and y is sitting at a, okay, y is stationary। so let us write down, so y is a, यहाँ पर y equal to तो क्या आ जाएगा हमारा a, right, and x is changing a to 0, from a to 0, okay। so this integral along क्या था वो, BC f dot dr, this is equal to f क्या था हमारा, x ix plus j by and dot product of this with dr, and अब dr क्या आएगा यहाँ पर, dr dx minus i cap, ये यहाँ पर कैच है, यही यहाँ पर कैच है, यहाँ पर minus i cap, नहीं, यहाँ पर इफ यू आर गोइंग फ्रॉम a to 0, ओके, तब फिर यहाँ पर i dx आएगा। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम 0 to a, तब वहां पर माइनस i आएगा। इफ यू आर कैलकुलेटिंग इन दिस डायरेक्शन दैट c to b, तब माइनस i आएगा। यस मैम ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना था, यहाँ नहीं, यहाँ पर i एक ही बार उसको काउंटिंग करोगे ना, तो यहाँ पर अगर तुम यहाँ से c to b कैलकुलेट कर रहे होते लाइन इंटीग्रल, तब तुम्हारा वो माइनस i लिखते और लिमिट्स क्या आ जाती, तब लिमिट्स हमारी तब क्या आती, 0 to a। यस मैम। मगर अगर a to 0 लिख रहे हो, तब तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। सो दिस इज i dx because you are calculating from b to c, not c to b, is it clear? यस मैम। ओके, यहाँ पर यही कैच था, ओके। सो दिस इज i मतलब जिस डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल लिया है वो पॉजिटिव होगा। बेटा लिमिट्स आप कैसे यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर रहे हो उस लाइन इंटीग्रल को, b to c, यूजुअली आप लाइन इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हो, ऐसे ही कैलकुलेट करते रहते हो, ओके। अगर हम एक ही बार काउंटिंग में आएगा ना भाई, डायरेक्शन को एक ही बार लोगे ना, 2 बार काउंटिंग थोड़ी करोगे। ए से जी ये बी से सी चल रहे हो, तब आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा i। मैम अगर हम ओ से सी और सी से बी और बी से ए और ए से ओ जाएं तो सारे नेगेटिव भी लेने पड़ेंगे, ये तो मतलब वो आपको उल्टा, हाँ उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, जो यहाँ डायरेक्शन लिए उनके उल्टी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी और लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली देखनी पड़ेंगी, ओके। मैम समझ में नहीं आ रहा, Okay. मतलब जो डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं वो पॉजिटिव लेंगे, बेटा डायरेक्शन तो वही पॉजिटिव कर रहे हो तुम, कैलकुलेट इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो, तुम्हारा एम क्या है, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ना।
तो अगर तुम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो तो डायरेक्शन यहाँ पर, क्योंकि ये वेक्टर्स है ना, तो वेक्टर्स में डायरेक्शन देखनी पड़ती है हमें। तो अगर तुम बी से सी की डायरेक्शन देख रहे हो तो तुम ए टू जीरो ले रहे हो उसको, एक्स को। एक्स कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? ए से जीरो तक चल रहा है ना। तो यहाँ पर आई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस आई हो जाएगी। कैसे हो जाएगी माइनस आई? फिर दो माइनस साइन आके प्लस हो जाएगा, वो नहीं होगी। वो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा हमें भाई। एक्स और बाई है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, तो आई जे कैसे लेते हो? यहाँ पर आई इसी साइड तो जाएगा, ये इसी साइड तो आएगा। यस मैम। है ना। अब अगर तुम, तब तुम इन दैट केस ऐसे इसको कैलकुलेट कर रहे हो, तब ये जो है आई आता है। पर अगर इस डायरेक्शन में अगर कर रहे हो तो फिर माइनस आई आ जाएगा। मगर अब हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, यस मैम। उल्टी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो एक ही बार माइनस साइन का अकाउंटेबिलिटी केवल एक ही बार तो लोगे, दो बार क्यों लोगे? ये कहाँ गया? ये देखो कि हम ऐसे चल रहे हैं ना। ओ मिट ही गया ये। जस्ट ये हम कैसे चल रहे हैं? ये देखो, ओ से ए, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ चल रहे हैं। तो हम चल रहे हैं इस तरह से। तो अगर, लेकिन जैसे तुम अगर बी से सी की तरफ चल रहे हो तब तो यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, इसी डायरेक्शन में, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा आई। लेकिन अगर तुम सी से बी की तरफ चल रहे होते तो तुम्हारी लिमिट चेंज हो जाती। लिमिट क्या आती तब तुम्हारी? 0 टू ए, और तब माइनस आई लेते आप। ओके, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में थी, आई की उल्टी डायरेक्शन में। भाई आई की डायरेक्शन ऐसे होगी ना, पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ही तो हुई पॉजिटिव। यस मैम। उल्टी लेते अगर, जब आप बी से यहाँ चल रहे हो तो एरो इस साइड लगाए तो उल्टी डायरेक्शन में एरो लगाए ना भाई। यस मैम। तो उल्टी डायरेक्शन में लगाए, दिस मीन्स कि आई उल्टी डायरेक्शन में है, तो तब माइनस आई लेते। ओके मैम। ओके, तो अभी तो तुम एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो, इसलिए तुम्हारे को वहां पे प्लस आई आ गया। ओके ओके, लाइन इंटीग्रल के लिए तो पॉजिटिव देते हैं एंटीक्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएंगी? यहाँ पर लिमिट क्या आएंगी? ए टू जीरो। सो एक्स की लिमिट क्या आएंगी? ए टू जीरो। ओके, एंड वंस यू नो दिस, जस्ट डू इट। तो यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा? ए टू जीरो and I dot I is 1, so x square dx, and so this is equal to x cube by 3 and a to 0, so ये क्या आ जाएगी? माइनस 1/3 a cube। ओके, माइनस 1/3 a cube। अब फोर्थ वन का देखो, फोर्थ वन पे क्या आ जाएगा? फोर्थ में भी अब क्या हो रहा है? फोर्थ along CO, तो you can see from here कि यहाँ x कैसे है? x is going from 0 to 0, means x is 0, x is not changing, but y is changing from a to 0। एरो इस डायरेक्शन में है ना, तो ये y is changing from a to 0, और यहाँ पर वो क्या आ जाएगा फिर? therefore if you are going in this direction, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? dr क्या हो जाएगा?
डी बाई एंड जे कैप। जे कैप। सो ये आ जाएगा जे डी बाई, एरो की डायरेक्शन में जे डी बाई। सो दिस इज along CO F dot dr and यहाँ पर x 0 है and y is changing from 1 to 0, A to 0. A to 0. Okay, so this is equal to y equal to A to 0 और ये क्या आया था x I x plus j y and ये क्या है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ j d y, राइट, और x 0 है, सो यहाँ पर ये 0 ही आ जाएगा, एम आई राइट? सो ये 0 ही आ जाएगा, ये 0 ही आ गया। ओके, नाउ सम अप ऑल दीज 4। ओके, सो 10 इंटीग्रल c f डॉट डी आर, दिस इज इक्वल टू जो भी कुछ आए हैं 1 2 3 4 उनको नाम दे दो और उनको सम अप कर दो। तो पहला इंटीग्रल आया था हमारा 1/3 a क्यूब, दूसरा आया था 1/2 a क्यूब, तीसरा आया था -1/3 a क्यूब एंड चौथा हमारा आया है 0 एंड दिस इज 1/2 a क्यूब। ओके, सो ये तो हुई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, now we want to verify this theorem. This means we have to prove that the left hand side is equal to the right hand side. So let us look at the right hand side. Okay, अब right hand side हमारी क्या है? थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ठीक है, ओके okay, so right hand side is this, क्या है वो, कर्ल f डॉट ds, right? Now what is curl f? Curl f is delta cross f. Curl f is delta cross f, and delta cross f you know by now how to calculate. So I j k delta over delta x, delta over delta y, delta over delta z, and f के कंपोनेंट क्या है हमारे, ith कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर, jth कंपोनेंट है एक्स बाई एंड kth है नहीं, therefore it is 0 and now you calculate it. कैलकुलेट कर लोगे? कैलकुलेट कर सकते हो ना? कोई हाँ नहीं बोल के दे रहा है। यस मैम। So this is I. So delta over delta y 0 है, so 0 delta over delta z x y is also 0 plus j delta over delta y x square is 0 delta over delta x x y, okay, and plus यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी नहीं, मैंने गलत कर दिया, जे के विथ रेस्पेक्ट है ना, ये डेल्टा ओवर डेल्टा जेड एक्स स्क्वायर एंड ये 0 होगा, 0। ओके, तो ये भी पूरा 0 हो गया, आई पूरा 0 है, जे पूरा 0 है एंड के पे क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स एक्स वाई, राइट, सो माइनस डेल्टा ओवर डेल्टा वाई एक्स स्क्वायर है, तो ये भी 0 आ जाएगा। सो ये होल थिंग क्या आ जाएगी हमारी, वाई के कैप, y k cap. Okay, so this thing equal to, okay, so by this is equal to by k. Okay, so हमारा ये आ गया by k cap. मैं कैप नहीं लगाती अक्सर, okay, but it is i j के जहाँ कहीं भी यूज हो रहे हैं वो उसी के लिए यूज कर रही हूँ मैं। ओके, सो अब यहां पर हमारा यू कैन सी फ्रॉम हियर कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, कर्ल एफ डॉट ds एंड व्हाट इज ds, कर्ल एफ तो आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज k बाई, ओके, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ ये इसका नॉर्मल कहाँ होगा,
इस वाली सरफेस के लिए नॉर्मल जेड डायरेक्शन में होगा ना, ये एक्स वाई प्लेन में है, सो जेड डायरेक्शन में होगा, दिस मीन्स kth डायरेक्शन में होगा, एंड एक्स वाई प्लेन में है तो यहाँ पर ds क्या हो जाएगा, dx dy, स्मॉल एलिमेंट क्या है इसका, dx dy, सो देयरफॉर दिस ds, दिस थिंग इक्वल टू k हैट, यहाँ पर k हैट लगा ही दूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, dx dy. Is it clear? Yes sir. So therefore this thing equal to ये इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, सो बाई dx dy. अब लिमिट्स क्या आ जाएंगी यहाँ पर, सरफेस इंटीग्रल की लिमिट्स क्या आएंगी मैम x के लिए 0 से a, और बाई की मैम 0 से a. ये तो स्क्वायर है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ये भी 0 से a है, ये भी 0 से है, एंड नाउ बाय नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, सो सॉल्व इट प्लीज. क्या आया बताओ, मैम a की पावर 3/2. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से मिल रहा है वो, राइट. Yes ma'am. So this is equal to x It's 3 o'clock. 0 to a and a square by 2. So therefore this is equal to a cube by 2. So therefore left hand side equal to right hand side, and therefore this is solved. So now let us stop here. Okay. फिर कल करते हैं और एग्जांपल्स, ठीक है. Yes ma'am. ओके. स्क्रॉल थोड़ा करना ऊपर। नीचे. हाँ, अब किसका को क्या क्वेश्चन था बेटा आपका, मोबियस स्ट्रिप का. मानस को है मैम, शायद लेफ्ट कर गई. कोई नहीं, लेफ्ट कर गया तो लेफ्ट कर जाने दो. नहीं है मैम, क्लास में है नहीं मानस मैम, है. शाह. हमारे यहाँ है. कहावत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सुपावत है. जो जागत है सो पावत है. So okay, see you next time. Yes. Thank you ma'am. Thank you. Okay, bye bye. Write down your attendance. Yes, ma'am.